Dear students, today we are going to read chapter 5 of your snapshot book. It is Mother's Day. It is a play, and this play describes the status of a mother in a household. Almost all the syllabus have been completed so far. In Hornbill book, we have completed all the chapters and poems. In Snapshot, we have only two chapters left. One is Mother's Day. This is the chapter we are going to discuss today. And one more chapter is there, Birth. So Mother's Day, as the title suggests you, that the chapter is based on mothers. And here the writer of the chapter wants to convey the message that every day is a Mother Day. Why the author J.B. Priestley, John Bynton Priestley, why he says that every day is a Mother's Day? Because mothers deserves respect all the days in our life. But sometimes a mother who does all household duties, whether she is working or housewife, sometime she is treated by dirt, she is treated as dirt or as useless thing by her family members. So writer says that it is very wrong. So in this play, you will read out how a mother who does all household duties and does every possible effort to make her family happy, how she is treated by her family members, and at the end, how the attitude of the family members changes. So this is a short description of the writer J.B. Priestley. He was an English novelist, playwright, scriptwriter, essayist, social commentator, and broadcaster. So, main characters in the play. Mrs. Pearson. So, two families are represented in the play. One family belongs to Mrs. Pearson, her husband, George Pearson, her daughter, Doris Pearson, her son, Cyril Pearson. In another family, Mrs. Fitzgerald is there. No other member of her family is not present on the scene. Only the members of Mrs. Pearson's family are present in the play. So these two characters, Mrs. Pearson and Mrs. Fitzgerald, they are good friends. Mrs. Fitzgerald lives in the neighborhood of Mrs. Pearson. But there is a great contrast between these two characters. Mrs. Pearson is a submissive lady. Submissive, थोड़ी डरपोक टाइप की lady है वो. And all the time she is busy doing the work, the domestic work. Nobody pays attention to her. Her children have become young. Doris and Cyril, both they are college going. They enjoy their life. They go to college. They attend parties, and they are happy. And in the same manner, George Pearson, husband of Mrs. Pearson, he always used to go in parties, in clubs, but he never takes Mrs. Pearson with him. So what does Mrs. Pearson do all the time? She does all household duties, and at the end of the day, all the family members come and they demand different things.
and Mrs. Pearson readily accepts their order, and she feels, in fact, she feels very honorable doing all this work. She has no complaint. On the other hand, Mrs. Fitzgerald, who lives in the neighborhood of Mrs. Pearson and also a good friend of Mrs. Pearson, she is very bold. She wants to live her life in her own way. She drinks, she plays the card, she goes to attend parties. So one day, and Mrs. Fitzgerald always notices the condition of Mrs. Pearson. So one day, Mrs. Fitzgerald goes to Mrs. Pearson. अब क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया, दोनों ही लेडीज, मिसेस पियर्सन घर का काम करती हैं, कोई रिस्पेक्ट नहीं करता फैमिली मेंबर, सभी एक्सपेक्ट उससे करते हैं कि वो घर का काम करे, कोई उसको थैंक यू नहीं कहा जाता, कोई उसको बाहर घुमाने के लिए नहीं लेके जाया जाता, एक ऑर्डरिंग सेंस में वो बात करते हैं। फैमिली मेंबर्स का कनेक्शन इतना ही है कि वो घर के उसके अपनी मदर से काम कराएं, दैट्स ऑल। मिसेस फिट्जर्ल्ड जो कि उनके नेबरहुड में रहती हैं, वो बहुत ही बोल्ड हैं, वो अपनी लाइफ को एंजॉय करना जानती हैं। तो एक दिन क्या है कि जब प्ले स्टार्ट होता है, ये एक बैकग्राउंड मैंने आपको बताई, जो मिसेस फिट्जर्ल्ड है वो मिसेस पियर्सन के घर जाती हैं। अब क्या है कि मिसेस फिट्जर्ल्ड की एक और क्वालिटी है, वो क्या है, शी नोज मैजिक। अब क्या जादू उनको आता है, एक्सचेंज ऑफ पर्सनैलिटीज। एक इस तरह का उनको एक मैजिक आता है कि जिससे कि एक इंसान अपनी पर्सनैलिटी दूसरे से एक्सचेंज कर लेता है। अब मिसेस फिट्जर्ल्ड जो कि मिसेस पियर्सन की फ्रेंड है, वो मिसेस पियर्सन को कहती हैं कि उन दोनों को अपनी पर्सनैलिटीज एक्सचेंज करनी चाहिए, एंड व्हाई दे शुड एक्सचेंज देयर पर्सनैलिटीज। ताकि मिसेस पियर्सन डरपोक हैं, लेकिन जब उनके अंदर मिसेस फिट्जर्ल्ड आ जाएगी, अपनी बॉडी को, अपनी सोल को वो चेंज कर लेंगी, तो मिसेस पियर्सन बोल्ड हो जाएंगी और वो अपने राइट्स को असर्ट्स कर पाएंगी, जो कि एज अ मिसेस पियर्सन शी इज नॉट एबल टू असर्ट हर राइट, बट व्हेन मिसेस पियर्सन विल बिकम मिसेस फिट्जर्ल्ड, शी विल बी एबल टू असर्ट हर राइट्स। अब क्या है कि जब मिसेस पियर्सन मिसेस फिट्जर्ल्ड बन जाएंगी, तो क्या होगा कि वो बोल्ड हो जाएंगी, वो अपनी बात को रख पाएंगी। और मिसेस फिट्जर्ल्ड को लगता है कि कुछ दिनों के लिए, जब तक फैमिली का एटीट्यूड सही नहीं हो जाता मिसेस पियर्सन के लिए, तब तक के लिए क्या है कि वो मिसेस पियर्सन बनेंगी। उससे क्या है कि उनके अंदर अच्छी क्वालिटीज होंगी, उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। शुरू में मिसेस पियर्सन मना करती हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो रेडी हो जाती हैं। और अब जब प्ले हमारा स्टार्ट होगा, तो मिसेस पियर्सन कहती हैं कि ठीक है, मैं मिसेस फिट्जर्ल्ड हूँ, और मिसेस फिट्जर्ल्ड मिसेस पियर्सन, यानी कि दोनों की शक्ल, बॉडी, एटीट्यूड सब कुछ चेंज है, वो हो जाता है। तो अब हम इस प्ले में यही पढ़ेंगे कि किस तरह से जो एक चेंजिंग एटीट्यूड है वो पूरी फैमिली को चेंज कर देता है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो आपका प्ले है, ये इसका जो टेक्स्ट है ये 20 और 25 पेजेस का है। तो हम उसको, क्योंकि प्ले की उसमें लिखा हुआ बहुत लेंथी है, अप्रोक्सीमेट इसको 7 और 8 पीरियड्स लग जाते हैं इसको लाइन टू लाइन पढ़ने में। लेकिन मैंने आपको समरी इस तरह से यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट में कर रही हूँ, जिससे कि चैप्टर का हर जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाएगा, एंड यू डोंट नीड टू रीड द टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर। So let's start reading the summary. Mother's Day, a play by J.B. Priestley portraying the status of a mother in a household. एक घर में क्या उसका status है? Priestley humorously explores the story when Mrs. Pearson, in her 40s, she is in her 40s, 40 के आसपास age है, stands up for her rights and how her family reacts at this, जो अभी मैंने आपको बताया। Mrs. Pearson is very fond of her family and works day and night to support her family member in the best possible manner. And she loves her family very much, as every woman loves her family very much. And she works day and night, and she does every possible efforts to please her family. However, she is upset at the way she is being treated. अब देखो, उसको कोई इस बात से एतराज नहीं है कि वो अपनी फैमिली मेंबर्स की सभी जो उनको खुश रखने के लिए हर संभव कोशिश करती है, लेकिन बदले में एक जो मदर है या एक वाइफ है, उसकी भी एक्सपेक्टेशन होती है कि उसको भी कोई प्यार से बोले, उसको भी रिस्पेक्ट दे। आखिर वो भी एक इंसान है, उसको भी अपनी लाइफ जीने का हक है। तो वो उस बात पे उदास थोड़ी रहती है कि वो क्यों नहीं उस पर रिस्पेक्ट करते हैं। Nobody cares for her or asks about her. All day long she stays at home doing all the work.
In the evening, when the kids and her husband returned, she gave through herself in meeting their demands. पूरा दिन वो घर में अकेली रहती है, काम करती है, और जब फैमिली मेंबर्स आते हैं, हस्बैंड और चिल्ड्रन आते हैं, तो वो लग जाती है उनकी डिमांड्स को पूरा करने में. She did not want any dislikable things to happen in her household, yet she carved for their attention and a little respect. हालांकि उसको लगता है कि अगर वो कोई ऐसी बात करेगी तो झगड़ा होगा, तो ऐसे डिसलाइकेबल थिंग उसको पसंद नहीं है, और इसलिए शी craved for their attention and little respect. तो इसी वजह से क्या है कि वो उनको पूरा ध्यान रखती है और उनको रिस्पेक्ट करती है. She went to her neighbor, Mrs. Fitzgerald. अब देखो ये दूसरा कैरेक्टर जो कि मैंने अभी डिस्कस किया, मिसेस फिट्जरल्ड है. फॉर्चून टेलर जो भविष्य बताने वाली है, और एक मैजिशियन भी है. ओल्डर एंड हैवी, थोड़ी सी वो उनसे एज में बड़ी हैं और हैवी उनकी फिजिक है. मिसेस फिट्जरल्ड कम्स विद ए प्लान, एक प्लान के साथ आती है अपनी फ्रेंड की हेल्प करने के लिए. शी प्रपोज दैट दे कुड एक्सचेंज बॉडीज इन द मिसेस पियर्सन्स बॉडी. वो एक ऑफर रखती है कि उनको अपनी बॉडीज को एक्सचेंज कर लेना चाहिए. She would teach a lesson to Pearson family that Mrs. Pearson could not herself, for she was too humble and nice to do that. और वो रीजन क्या देती है कि एज मिसेस पियर्सन बनके तो वो कभी भी अपने राइट्स के लिए नहीं लड़ पाएगी, लेकिन जब मिसेस फिट्जरल्ड बन जाएंगी, उनके अंदर उनकी क्वालिटीज आ जाएंगी, तो ब्रेव हो जाएगी, बोल्ड हो जाएगी, और वो रिस्पेक्ट जो है वो विन कर सकती हैं. दो reluctant means unwilling, Mrs. Pearson agreed to the idea and the two exchanged their bodies. हालांकि उनको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी फ्रेंड के कहने पे वो तैयार हो जाती है अपने आप को एक दूसरे से वो एक्सचेंज करने के लिए. Mrs. Pearson was still not sure and asked Mrs. Fitzgerald if she could get her body back. एक बार उनको डाउट होता है कि वापस वो उसी उसमें आ जाएगी कि कभी पूरी उम्र के लिए वो मिसेस फिट्जरल्ड ही बन जाए. However, determined, Fitzgerald tell Mrs. Pearson to not worry and that she would handle the matter carefully. वो समझाती है कि इसमें टेंशन वाली बात नहीं है और वो इस मैटर को वो कर लेगी. हालांकि मिसेस पियर्सन डरी हुई हैं. She left for Mrs. Pearson's home with Mrs. Pearson's body. और यहाँ पे क्या है कि दोनों एक्सचेंज अपनी पर्सनैलिटी कर लेती हैं, और जो मिसेस पियर्सन है वो मिसेस फिट्जरल्ड बन जाती है, जो मिसेस फिट्जरल्ड है वो मिसेस पियर्सन. She entered the home and knew what she was to do to teach Mrs. Pearson a lesson so they would not bother Mrs. Pearson in future unnecessarily. और सिर्फ एक ही मोटिव है कि मिसेस पियर्सन की फैमिली को एक पाठ पढ़ाना, एक लेसन टीच करना कि फ्यूचर में वो फालतू की बकवास उनसे ना करे. मिसेस पियर्सन, अब ये देखिए अब वो क्या हो चुकी है. मिसेस फिट्जरल्ड सोल smoked a cigarette and was confident than ever. अब देखो सारी क्वालिटीज वो आ गई हैं. अब से पहले मिसेस पियर्सन कभी भी स्मोकिंग नहीं करती थी, कभी ड्रिंक नहीं करती थी, इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी. तो अब क्या है कि वो अभी फैमिली मेंबर वहां पर नहीं है और वो मजे से सिगरेट पी रही हैं, स्मोक कर रही हैं और ड्रिंक कर रही हैं. और कुछ देर में सबसे पहले आप देखो कि अब तीनों फैमिली मेंबर्स का क्या क्या रिएक्शन है. सबसे पहले जो डोरिस पियर्सन है वो आती है. A few minutes later, her daughter Doris Pearson entered the house and started demanding tea and her dress. आते ही ऑर्डर अपनी मदर को देती है कि चाय बनाओ और उसकी ड्रेस रेडी करो. Mrs. Pearson was sure to make her realize that she was Doris' mother and not a servant. अब मिसेस पियर्सन जो एक मिसेस फिट्जरल्ड बन चुकी है, वो कहती है कि मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ. उसको ये रियलाइज कराती है अपना काम आप करो. अब डोरिस जो पियर्सन है वो बड़ी हैरान होती है. She was stunned to see her mother smoking and that she had not prepared tea for her and her dress was not ready as well. हमेशा काम रेडी होता था, तो ऑब्वियसली जो डोरिस है वो एकदम से स्टन्ड है, हैरान है, किस लिए अपनी मदर को स्मोक करते हुए देख के और ये देख के कि अभी टी भी रेडी नहीं है. Doris told her mother that she was to go out with her beau. Charlie Spence, beau means होता है बॉयफ्रेंड, फियोंसे, उसका जो एक बॉयफ्रेंड है चार्ली स्पेंस उसका नेम है, तो उसके साथ उसको पार्टी पे जाना है डोरिस को. तो वो कहती है वहां जाना था. ऑन विच द मदर रिमार्क इफ शी कुड नॉट फाइंड सम वन बेटर. अब क्या है कि मदर उसका जो बॉयफ्रेंड है चार्ल्स स्पेंसर उसका भी मजाक उड़ाती है और वो कहती है कि तुम्हें उससे कोई बढ़िया नहीं मिला, इतना बकवास था, तुमने अपने लिए बॉयफ्रेंड है वो ढूंढा है. दिस ब्रोक डोरिस एंड शी फेल्ट वीपिंग. और जब वो ये देखती है कि वो, और इवन वो उसको क्या बोलती है, बक टीथ एंड हाफ विटेड, जो आपके टेक्स्ट में लिखा हुआ है. जो बक टीथ होता है जिसके टीथ में गैप होता है, छोटे छोटे जिसके दांत होते हैं. हाफ विटेड जो बेवकूफ होता है, आधा पागल होता है. इस तरह से वो उसका
उसके बॉयफ्रेंड का मजाक उड़ाती है और डोरिस इसको सहन नहीं कर पाती और वो रोने लगती है। तो सबसे पहले घर में जब वो अपनी पर्सनालिटीज को एक्सचेंज कर लेती हैं तो डोरिस की एंट्री है वो होती है। Then came the son, Cyril Pearson. ये son है, who is amused at his mother's strange behavior. Amused, हैरान है और ये देख रहा है भाई हो क्या रहा है ये। They get into an argument, both brother and sister Doris and Cyril. They do argument कि what is going on with her mother. The children could not battle the situation. समझ नहीं पाते क्या हुआ when the mother left to fetch the stout. Stout is a kind of wine. वो लेने के लिए जाती है। The children discuss their mother's behavior. सीन पे मदर स्टाउट लेने के लिए गई हैं तो दोनों आपस में ब्रदर सिस्टर बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या मदर को। डोरिस फेल्ट दैट इट माइट हैव बीन दैट मदर गोट हर हेड हिट। अब डोरिस कहती है कि पीछे से शायद सिर में चोट लगी और मदर पागल हो गई है। Then enters mother with the bottle of stout and a glass half filled with it. और तभी जो मिसेस पियर्सन हैं वो आती हैं जिनके अंदर अभी मिसेस फिट्जरल्ड है और वो बोतल उन्होंने स्टाउट के लिए हुई है, हाफ ग्लास उसका वाइन से फिल है। The children begin to laugh at the mother, chided them, asked them to behave like grown-ups. अब मदर chided का मतलब होता है डांटना। जब वो हंसते हैं तो मदर डांटती है और कहती है बेवकूफों की तरह तुम हंस रहे हो, तुम ग्रोन बड़े हो चुके हो, ग्रोन अप्स की तरह बिहेव करो। Doris then asked her mother for her such behavior and if they had done something wrong. अब वो हैरान हो जाती है, वो पूछती है अपनी मदर से कि क्या हमसे कोई गलती हो गई है जो आप इस तरह से बिहेव कर रही हैं। Then Mrs. Pearson tell them it is actually the children's and her husband behavior that has disturbed her. अब मिसेस पियर्सन कहती है कि वो इसलिए ऐसी हो गई है क्योंकि अपने बच्चों का और खुद अपने हस्बैंड का जो बिहेवियर है वो उसको परेशान करता है। They always come and go without bothering about her. उन्हें कोई परवाह नहीं है उसकी। They demand duties from her and she does her best to keep everyone happy and still nobody is bothered about her. वो अपनी पूरी कोशिश करती है फैमिली मेंबर्स को हैप्पी करने के लिए लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं करता। She remarks that while the three of them do a job of 40 hours a week with 2 days as weekend. अब वो क्या कहती है, वो कहती है कि वो डेली 8 आवर्स काम करेगी और 5 डे इन अ वीक काम करेगी, यानी कि टोटली 40 आवर्स वो काम करेगी और लास्ट में वीकेंड उसकी छुट्टी रहेगी जैसे कि सबकी होती है। शी गोज ऑन वर्किंग 7 days राउंड द क्लॉक। वो पूरा का पूरा टाइम जो काम है वो करती रहती है। She proclaimed that she would do some work on Saturday and Sunday only if she thanked for everything. सैटरडे संडे को उसकी मर्जी है, तब करेगी जब कोई थैंक्स उसको कहेगा या उसको अच्छा फील होगा। अदरवाइज ऑन सैटरडे एंड संडे शी विल बी रिमेन it will remain off for her. When the mother scolded Doris and Cyril, Julie entered George Pearson. थर्ड कैरेक्टर, अभी फादर की एंट्री नहीं थी। डोरिस और साइरल के, मिसेस पियर्सन के जो हस्बैंड है जॉर्ज पियर्सन, वो एंटर करते हैं। इज annoyed at her wife sipping stout wine पीते हुए वो बड़े गुस्से में होते हैं। He told her that he would have supper at the club and that he did not want tea. आके कहते हैं उन्हें आज चाय नहीं पीनी क्योंकि क्लब में जाना है। सपर का मतलब होता है डिनर। The wife told him that there was no tea. वो कहते हैं कि टी तो है ही नहीं, तुमने पीनी होती तब भी कोई चाय वगैरह का कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। He got annoyed, angry हो जाते हैं कि वाइफ कैसे उनसे बात कर रही है। And the wife then said that when he did not want tea, then why was he fighting for it? फिर वो क्यों लड़ाई कर रही है अगर चाय नहीं बनानी। Mr. Pierce in flabbergasted at such conduct होता है behavior। फ्लैबरगेस्टेड होता है, शॉक्ड, हैरान रह जाते हैं कि आज से पहले जिसकी कभी हिम्मत नहीं थी बोलने की वो इस तरह से सवाल कर रही है। द वाइफ कंटिन्यूज टू रिब्यूक द हस्बैंड, रिब्यूक डांटना, टेलिंग दैट व्हाई ही गोज टू क्लब व्हेन ही इज अ जोक अमंग ऑल देयर। अब वो कहती है कि तुम जहाँ क्लब में जाते हो ना वहां पे तुम्हारा लोग मजाक उड़ाते हैं। और वो जो फ्रेज लिखा है आपके टेक्स्ट में वो कहती है कि आप तुम्हें वहां पे पोम्पी ओम्पी पियर्सन कहते हैं। पोम्पी ओम्पी होता है जो मोटा होता है। He stunned and demanded the truth from his son. मिस्टर पियर्सन को, जॉर्ज पियर्सन को बड़ी हैरानी होती है और वो अपने बेटे से पूछता है कि क्या क्लब में लोग सच में उसके ऊपर हंसते हैं। Cyril got upset at his mother yet told the father that it was truth. और वो कहता है कि हाँ कि वो क्लब में इसी तरह से तुम्हें बोलते हैं। अब इस तरह से बहुत एक बहस हो जाती है तीनों जो फैमिली मेंबर्स हैं चारों के बीच में और तभी जो मिसेस फिट्जरल्ड है, एक्चुअल में जो मिसेस पियर्सन है, वो आ जाती हैं। Then enters Mrs. Fitzgerald, actually Mrs. Pearson. Mrs. Pearson, actually Mrs. Fitzgerald, told her that she was just putting everyone at place and that the things were all right. अब Mrs.
फिट्जरल्ड जब आती हैं, जो कि मिसेस पियर्सन, उनको देख के बड़ी हैरानी होती है कि उनकी बेटी रो रही है, क्योंकि अंदर से तो वो मिसेस पियर्सन ही है। तो वो कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो मिसेस फिट्जरल्ड कहती है कि मैं इनको इनकी सही औकात दिखा रही हूँ, सही जगह दिखा रही हूँ। मिसेस पियर्सन, जो कि मिसेस फिट्जरल्ड है, requested to have her body then and Mrs. Pearson on a condition that Pearson would not go soft on her family again। अब वो कुछ देर के लिए अपनी फैमिली मेंबर्स को कहती हैं कि तुम जाओ, अभी हम बात करके आते हैं। और मिसेस पियर्सन एकदम से कहती हैं कि अब बहुत हो चुका और अब ये हम वापस अपनी अपनी पर्सनैलिटी में आ जाते हैं। तो मिसेस फिट्जरल्ड कहती हैं कि एक शर्त पे मैं ये पर्सनैलिटी एक्सचेंज करूंगी कि तुमने अभी भी वैसे ही स्टिक्ट रहना है, नहीं तो तुम्हारी वही कंडीशन हो जाएगी। दे गो इन टू देयर ओरिजिनल बॉडीज, और वो कहती हैं कि ठीक है, मैं वैसे ही रहूंगी, अपनी रिस्पेक्ट नहीं खोऊंगी। तो ओरिजिनल बॉडी में आ जाती हैं और जो मिसेस फिट्जरल्ड है वो चली जाती हैं। द मदर एंड द चिल्ड्रन एंड हस्बैंड स्माइल टू ईच अदर। इट वाज डिसाइडेड दैट दे ऑल विल हैव द डिनर टुगेदर एंड प्ले अ गेम ऑफ रमी। कार्ड का गेम, ताश का गेम होता है, और यहाँ पे एक हैप्पी एंडिंग आपके प्ले की होती है, और वो डिसाइड करते हैं कि आज के बाद वो अपनी मदर का ध्यान वो रखेंगे, वो डिनर वो बनाते हैं, और एक प्ले जो है वो हैप्पी नोट पे यहाँ पे आपका एंड हो जाता है।